تو رمضان 2025 کا مہینہ آ چکا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں شیطان کو زنجیروں سے قید کر دیا جاتا ہے، اور اس کا اثر بھی دکھ رہا ہے، کیونکہ سال بھر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے بھی اب رمضان کے پوتر مہینے میں مسلمانوں کی اور اسلام کی کافی تعریف کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی غازہ میں کیسے مسلمانوں نے کیا اپنا پہلا روزہ، اور بھارت میں کیا کچھ چل رہا ہے رمضان کے متعلق، رمضان میں کیسے گھمسان مچا ہوا ہے، تمام چیزوں کی چرچا انشاءاللہ اس ویڈیو میں کریں گے۔ اس سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں محمد نفیس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پولیٹیکل۔ تو رمضان کا پوتر مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان 30 دن 29 دن روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں اور کافی زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، یعنی غریبوں کی۔ اس مہینے میں جتنا مسلمان غریبوں کی مدد کرتے ہیں اتنا پورے سال نہیں، اس سال اس مہینے زیادہ کرتے ہیں۔ تو تراویح کی نماز مسجد اقصی میں پڑھی گئی، کیونکہ انڈیا سے ایک دن پہلے وہاں پر روزہ شروع ہو گیا۔ روزہ کا معاملہ پورا چاند سے ہے، وہاں پر چاند دیکھا گیا، انہوں نے شروع کر دیا۔ یہاں پر چاند نہیں دیکھا گیا، اسی لیے ہم نے بعد میں شروع کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاند دیکھو روزہ شروع کرو، چاند دیکھو افطار کر لو۔ تو جس ملک میں چاند دکھے گا وہ پہلے روزہ رکھ لے گا، جہاں چاند نہیں دکھا تو وہ اگلے دن یعنی اندازے سے روزہ رکھے گا، جو کہ ایک دن کا آگے پیچھے ہوتا ہے۔ غازہ کے اندر غازہ میں یدھ ویرام کے بعد لوگوں نے پہلی بار روزہ کی اور افطار کی، جس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ چاروں طرف ٹوٹا ہوا جگہ ہے، چاروں طرف بکھرے ہوئے ملبے کے بیچ راستے کو سجایا گیا لائٹ سے اور سجاوٹی کام سے، اور لوگوں نے افطار ڈسٹریبیوٹ کیے، ایک دوسرے کے ساتھ افطار کا حصہ بانٹا اور ایک دوسرے کا روزہ کھلوایا، جو کہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اور لوگوں نے خوشی اتنی دکھ کے بیچ بھی لوگ، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، تو وہ یہ سب نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا گھر ٹوٹ گیا تو ہم روزہ کہاں سے کریں، افطار کیسے کریں۔ ان کا ماننا ہے کہ سب کچھ اللہ کا مرضی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ سب آزمائش ہے۔ لیکن ہمیں رمضان جیسا مہینہ ملا ہے تو ہمیں اسے ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تمام دکھ مصیبت کو بھول کر ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے نیم اور قانون کو پالن کرنا چاہیے، کیونکہ افطار کرنا اللہ تعالیٰ دوارا بنائے گئے نیم قانون کا حصہ ہے۔ اب آتے ہیں مودی جی، یوگی جی اور ہیمنت بسوا شرما کے اوپر۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو شیطان جب زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، قید ہو گئے، تو آپ کو بہکانے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کا اثر صاف صاف دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جیسے کہ وہ مودی جی، آپ نے بہت کم ہی ان کو مسلمانوں کے تہواروں میں یا پھر مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن مودی جی نے رمضان کے پوتر موقع پر مسلمانوں کو بہت خاص مبارکباد دی ہے، مسلمانوں کو بدھائی دی ہے۔ سنیے مودی جی نے کیا کہا۔ رمضان کا مبارک مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ میں آپ سبھی کو اور سبھی دیش واسیوں کو رمضان کی بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ تو مودی جی نے رمضان کی بدھائی دی۔ اس کے علاوہ بھی مودی جی نے کچھ لکھا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ مودی جی کہتے ہیں، ایز دا بلیسڈ منتھ آف رمضان، رمضان ایک پوتر مہینہ ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ بگن may it bring peace and harmony in our society، جس کی وجہ سے ہمارے سوسائٹی یعنی ہمارے بھارت میں پیس، شانتی قائم ہوگی، بھائی چارہ قائم ہوگا۔ رمضان مبارک۔ تو مودی جی مانتے ہیں کہ رمضان مہینہ ایک پوتر مہینہ ہے، جس میں لوگ یوگدان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، سیکریفائز کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اور انہوں نے بھارت کے تمام مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دی ہے۔ اب شیطان اگر کھلا ہوتا، شیطان قید نہیں ہوتا، تو کیا مودی جی واقعی میں رمضان اور اسلام کی تعریف کرتے؟ نہیں کرتے۔ یوگی جی، ہندوتوا کا فائر برانڈ نیتا، انہوں نے بھی رمضان کو لے کر مسلمانوں کو بدھائی دی ہے۔ یوگی نے کہا ہے کہ پوتر رمضان ماہ کے اوسر پر، یعنی رمضان مہینے کے موقع پر، پوتر یعنی پاک مہینے کے موقع پر پردیش واسیوں کو یعنی اتر پردیش کے لوگوں کو ہاردک بدھائی۔ انہوں نے ہندو اور مسلمان سب کو رمضان کی بدھائی پیش کی ہے۔ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رمضان کے پوتر دنوں میں روزہ، مانوتا کی سیوا، ایشور کی بندگی جیسے نیک کاریوں سے یہ مہینہ گھیرا ہوا ہے۔ سوچو، جو یوگی جی کل تک بول رہا تھا کہ کٹملا بنانا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے اتنی نفرت، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان ایکچولی میں لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اب جب شیطان زنجیر سے جکڑ کر قید کر دیا گیا ہے، تو وہی یوگی جو کل تک مسلمانوں کو سے نفرت کرتا تھا، آج وہ مسلمانوں کی اور اسلام کی تعریف کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان وہ پوتر مہینہ ہے جس میں روزہ رکھتا ہے مسلمان،
मानवता की सेवा करता है मुसलमान, ईश्वर की बंदगी करता है मुसलमान, और इस जैसे नेक कार्यों से घिरा हुआ है पूरा रमज़ान। ये योगी जी का बयान, ये योगी जी का रमज़ान को लेकर बयान है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने लिखा, सहनशीलता वाला ये महीना है, सादगी आदि मूल्यों को बढ़ावा मिलता है रमज़ान से। उन्होंने कहा रमज़ान मुबारक। यानी रोज़ा मुसलमान रखता है तो मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान चोरी नहीं करता, मुसलमान करप्शन नहीं करता। इतनी तारीफ़ योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर रमज़ान के पवित्र महीने में की है। तो हम कहते हैं सद्दक़्ता या रसूल अल्लाह। वाक़ई में रमज़ान में शैतानों को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। क्योंकि इसका असर हमें आज 2025 में भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग ज़हर उगलते हैं पूरे साल, वो लोग आज इस्लाम की तारीफ़ कर रहे हैं, वो भी खुलकर मंच से। इनको डर भी नहीं कि इनका हिंदू वोट बैंक क्या कह रहे हैं, लेकिन सच इनके मुँह से निकल रहा है। अब खुशखबरी मुसलमानों के लिए। तमिलनाडु के माफ़ करना, आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू सरकार का बड़ा फैसला है कि रमज़ान में मुस्लिम कर्मचारियों को ऑफिस से जल्दी मिलेगी छुट्टी। आज कट्टरता के वक्त में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर लोग हिंदू समाज को खुश करने के लिए सब काम सरकार करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को नीचा दिखाने की कोई कसर ये लोग नहीं छोड़ते। आज बीजेपी के सहयोगी दल टीडीपी भी रमज़ान के महीने में मुसलमानों को अफ्तारी के लिए जल्दी जाने की अनुमति दे रहे हैं। यानी जो सरकारी मुस्लिम मुलाजिम जो काम करते हैं, उनको ये छुट्टी दी गई कि आप रोज़े अफ्तार से कुछ वक्त पहले आप जाइए और अफ्तार बनाइए। और इसकी शुरुआत तेलंगाना से हुई। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तेलंगाना के सीएम मुसलमानों से इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इमाम के साथ विधायक, उनको प्यार करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया, शाम 4 बजे मुसलमान मुलजिमिन कर सकेंगे छुट्टी। यानी जो मुस्लिम कर्मचारी जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो मुसलमान, वो 4 बजे, क्योंकि मगरिब के नमाज से 4 बजे से 2 घंटे का फ़र्क है अफ्तार के लिए, वो 2 घंटे पहले ही 2 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये छुट्टी ले सकते हैं, अफ्तार की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है, एक शख्स जिसके अंदर इतना ज़हर भरा हुआ है और जो आज भी ज़हरी उगल रहा है, हेमंत विश्व शर्मा, असम का चीफ मिनिस्टर। ये कहता है कि असम की जो असेंबली है, वहाँ पर कोई नमाज को लेकर ब्रेक नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। जबकि असम के असेंबली में मंदिर है कि नहीं, ये इनसे पूछिए, हेमंत विश्व शर्मा से, कि असम के असेंबली के अंदर कोई मंदिर है कि नहीं है, कोई मूर्ति है कि नहीं है, या वहाँ पर कोई तस्वीर है कि नहीं है। मुसलमानों पर अलग कानून क्यों बना रहे? ये रमज़ान से पहले की खबर है, रमज़ान से पहले की खबर है। लेकिन जिनका ये मानना है कि असेंबली में या फिर ख़ास त्योहारों को बढ़ावा हम लोग नहीं देंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि प्रयागराज में जब महाकुंभ चल रहा था, तो सारे स्कूल को 12 फरवरी तक बंद कर दिया गया। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये दोगली नीति है? ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? आप कहते हैं कि हम नमाज को वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन जब आपका धार्मिक प्रोग्राम आएगा, तो आप तमाम स्कूल को बंद कर दे रहे। उन स्कूलों में क्रिश्चियन के बेटे भी हैं, हिंदू के बच्चे भी हैं और मुसलमानों के बच्चे भी हैं। तो आपका धार्मिक, आपका धर्म, लेकिन मुसलमानों को धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। और ये सही भी है, मैं बीजेपी सरकार का सपोर्ट करता हूँ। जब मुसलमान अपने नेता और अपनी पार्टी को नहीं चुनेंगे, तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और ये सब कुछ बिल्कुल अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। लेकिन फिर भी हेमंत विश्व शर्मा ने मोदी जी का रमज़ान मुबारक वाले ट्वीट को रिट्वीट किया, क्योंकि शैतान कैद हो चुका है। अगर शैतान होता तो क्या पता ये रिट्वीट करता कि नहीं करता। इसने रिट्वीट किया जहाँ पर मोदी जी ने रमज़ान की तारीफ़ की, इस्लाम की तारीफ़ की, मुसलमानों की तारीफ़ की, नेकियों का ज़िक्र किया, इस्लाम का ज़िक्र किया। उस ट्वीट को भी हेमंत विश्व शर्मा ने ट्वीट किया है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद है रमज़ान को लेकर मुसलमानों को चेतावनी देना। देखिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि रमज़ान में शैतानों को ज़ंजीरों के साथ जकड़ दिया जाता है, ताकि जहन्नम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाता है, ताकि वह मुसलमानों को बहका ना सके। रमज़ान एक ऐसा महीना है जो खुशनसीब मुसलमानों को मिलता है। अगर इस रमज़ान से पहले जो मुसलमान मारे जा चुके हैं, ये उनके लिए वाकई में बदनसीबी है। और उन मुसलमानों के लिए खुशनसीबी है जिनको इस रमज़ान तक हार्ट अटैक नहीं आया, जिनकी मौत नहीं हुई, जिनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो सही सलामत है, अल्लाह की इबादत कर सकते हैं और उनकी इबादत में खलल ना पड़े, इसीलिए शैतानों को जंजीर के साथ जकड़ दिया गया है। तो मैं दुनिया भर के, जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, मैं उन मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुसलमानों उठो, घर से बाहर निकलो, अपना वक्त पूरा रोज़ा नमाज में लगाओ। अगर तुम सहरी करते हो रोज़ा रखने के लिए, तो रोज़ा की हालत में झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, बुराई मत करो। अपने रोज़े का इस्तेमाल करो अपने शहवत को रोकने के लिए, अपने नफ्स पर काबू पाने के लिए। यही एक महीना है, सिर्फ एक आखिरी मौका है जहाँ पर तुम अल्लाह को मना सकते हो, अल्लाह को राज़ी कर सकते हो। तो रोज़े रखो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुआ करो, सदका खैरात करो।
दूसरों की मदद करो, इफ्तार करो, तरावी पढ़ो और पूरे रमज़ान इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करते रहो और अल्लाह को राज़ी करने में कोई कसर मत छोड़ो, क्योंकि और भी काम करने के लिए 11 महीने हैं। रमज़ान सिर्फ 1 महीने का है और यही महीना बचा है जिसमें हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। आज किसको कब हार्ट अटैक आएगा कोई भरोसा नहीं है, कौन कब मौत का मज़ा चख लेगा कोई भरोसा नहीं है। तो अल्लाह को राज़ी करो ताकि मौत के वक्त मलिकुल मौत तुम्हारे सामने उस हालत में ना आ जाए जिस हालत में वो काफिर के सामने आते हैं, मुशरिक के सामने आते हैं और गुनाहगार लोगों के सामने आते हैं, ताकि कब्र में तुम्हारे साथ वो सुलूक ना हो जो सुलूक काफिरों के साथ होता है, मुशरिकों के साथ और गुनाहगार लोगों के साथ होता है। अल्लाह ताला के साथ अगर आप गुमान अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको अपना नेकी भी बढ़ चढ़ कर करना पड़ेगा ताकि अल्लाह को लेकर आपका गुमान अच्छा हो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बंदे के लिए वैसे हूँ जैसा बंदा मेरे लिए सोचता है। तो इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और पुतिन के माफ़ करना डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बहसा-बसी हुई, वो खबर जो असल में गोदी मीडिया ने आपसे छुपा ली, जो मुसलमानों को जानना ज़रूरी, जिसका ज़िक्र पहले ही कुरान में किया जा चुका है। तो इस वीडियो को अगले वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट पर अपनी बातों को रख सकते हैं। आपको मेरी बातों से जो भी अगर आप ऑब्जेक्शन रखते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट पर रख सकते हैं। मैं आपका कमेंट का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें। मज़ीद अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मीशो ऐप में आप टी शर्ट परचेज़ कर सकते हैं। टीपी क्लासिक नाम का एक शॉप है, जो कि इसमें से आप जो भी टी शर्ट परचेज़ करेंगे टीपी क्लासिक से, उसका कुछ फ़ायदा मुझे भी होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है, आप जाइए और टी शर्ट परचेज़ कीजिए, जो कि सदका जारिया के रूप में ही जोड़ा जाएगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें नेक बातों का ज़िक्र है। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफ़ीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।